So Mrinali, आपने so you're a physiotherapist, right? So I'm actually, I've done my graduation in physiotherapy, and then after हाँ that, जी. I did not enjoy practicing physio as much. So I moved to do my MBA instead. Instead of doing any specialization, I actually got through masters in physiotherapy, but हम्म. I didn't pursue that. I went on to do an MBA because somewhere I think I always knew that I wanted to get into fitness and हम्म. lifestyle management and all of that. So doing a Right. master's did not really make sense for me. MBA seemed like more like a more beneficial option. Like it that अच्छा. seemed like the right step to where I wanted to get. So yeah, so that's what I did, and then I'm presently working as an HR in an internet अच्छा. company. I work with the Naukri.com, ओके. InfoEdge. They ओके, have सो वो तो Naukri, कहीं Jeevan वो कहीं Sathi. प्रोफाइल पे मिला ही नहीं मुझे आपकी. मैं आपकी प्रोफाइल में वो बहुत मैंने पीछे तक गया. आई वेंट टिल yeah. So 2014, मतलब मैं बिल्कुल डीप चला गया था आपकी uh, प्रोफाइल में. तो एक जो yeah. So मुझे बड़ा कॉमन हैशटैग मिला आपकी प्रोफाइल पे, हैशटैग दिल्ली वेडिंग्स. then I think there was a period of time when all of our friends were getting married. So अच्छा. uh, So you are that from was Delhi only. yeah. I'm from Delhi. I've done my schooling from Delhi, then I did my graduation from Delhi. Then I went for Okay. my MBA to Mumbai. I did it from Narsi हम्म. Munshi, Mumbai. That was a full-time हम्म. course for 2 years, where I stayed in Mumbai. Then I did 1 year of job in Mumbai. Then I got married and moved back. So I've only stayed in these two cities ever, Mumbai and Delhi. Okay, so currently you are in Delhi only. Yes, I'm in Gurgaon now. Recently moved to Gurgaon Okay. 6 months back. नाइस नाइस. ठीक है. So सो कैसा जा रहा है अभी? मतलब आई गेस यू रिसेंटली आपने न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ वो करा ना? yes, so I want to actually focus on women fitness. Uh, हम्म. so actually last couple of years only I figured out that what is it that I really want to do. राइट. Excuse me. It's okay. Yeah. So last couple of years only I think I've got clarity after COVID struck. हम्म. Uske pehle I was like, okay, do I want to be like a trainer? Do I want to be a nutrition coach? I think हम्म. I didn't know. और ये सब हमें कट करना पड़ेगा. कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा. ये इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज. Yeah. हाँ So, जी. um, whether I want to teach yoga, I wasn't very clear on what I actually want to do. So yeah, but then, राइट. I think slowly when I did my certification from ISA, completed that last year. हम्म. So, decided that, I want to do a lot of nutrition coaching, which also includes other things like exercise planning, focus on राइट. other lifestyle changes, behavior changes, like sleep, राइट. activity, all of that. And then, yeah, maybe couple of months, maybe nahi, actually, the plan is couple of months from now, I also want to start teaching yoga. So I think these two things ओके. I will focus on. हाँ नहीं, आई गॉट यू कि मतलब फीमेल फिटनेस का मुझे पता लग गया था, बिकॉज आई एम ऑल्सो परस्यूइंग एस का एक प्रोग्राम है ड्यूरिंग Acha, प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी okay, फिटनेस वाला. तो आई एम ऑल्सो परस्यूइंग okay. दैट. तो आपने एक वो रील डाली थी जिसमें डायसिस रेक्टाई के बारे में आपने बात किया था, व्हेन Yeah, द एब्स मसल गेट्स टियर्ड. yes, तो yes. उसके बारे में आपने बात किया. सो दैट रील, आई सॉ दैट रील दैट स्ट्रक मी. फिर मैंने आपका प्रोफाइल खोला. सो सुमित सर वर ऑलवेज फॉलोइंग यू. तो फिर Yeah, वहां yeah, से yeah. आई गॉट टू नो एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू. Acha. अभी मेरे को जैसे मैंने ये प्लान किया कि ठीक है, आई वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, बिकॉज रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने शुरू करे. Okay. मतलब सडनली एक तो इंडिया में अभी बूम आया पॉडकास्ट का. हाँ, that's अचानक true. से यूल सी कि बहुत सारे पॉडकास्ट शुरू हो रहे हैं. मैंने बोला लेट्स, मतलब मेरे साथ हर बार ऐसा होता है कि मैं ट्रेंड देख लेता हूँ, बट आई एम नेवर एबल टू हॉप ऑन टू इट. तो मैंने इस बार बोला कि नहीं, इस बार स्टार्ट करूंगा. तो Yeah. मैंने यश सर को मैं बोला. तो यश सर ने बोला भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आई विल डू इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. तो मैंने बोला नहीं, शुरू तो मुझे अभी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो Yeah. मैंने थोड़ा सा इंस्टा अपना देखा कि हु इज अ पर्सन जो एक्चुअल में नॉलेजेबल कंटेंट बात कर रहा है, कि ठीक है कुछ ऐसी बात कर रहा है जो सच में एप्लीकेबल है फिटनेस फील्ड में.
तो आई गॉट योर Yeah. प्रोफाइल, तो मैंने आपको मैसेज करा था उसके रिगार्डिंग फिर। थैंक यू, दैट मीन्स सो मच। क्योंकि हर या तरह का कंटेंट है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट वैल्यू कंटेंट फ्रॉम ऑल ट्रू। अदर एंड कंटेंट ही। व्हाट आई पर्सनली फील इज कि वैल्यू कंटेंट तो अभी रीच ही नहीं कर रहा है लोगों को। या ये तो है। इट्स अभी भी मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन शोइंग ऑफ देयर एब्स एंड देयर बॉडी। एग्जैक्टली। मतलब मुझे एक्चुअल बात कोई पर्सनली कर ही ऐसा नहीं फील रहा। होता है कि जिनकी रील्स पे मतलब मैं अगर देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, आई सी पीपल हैविंग 70,000 व्यूज, 100,000 व्यूज, या 1 मिलियन व्यूज हो गए हैं। एंड कुछ ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि जिसको देख के मेरे को ऐसा लगे कि हाँ यार ये चीज ऐसी थी कि जिसे देख के मेरे को लगा कि होना चाहिए, या ऐसा कुछ होना चाहिए। राइट, इंडिया बिल्कुल। में मोस्टली पीपल आर शोइंग ऑफ देयर एब्स और ये सारी या चीजें। ट्रू। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। और मेरे को ना ये चीज बहुत ज्यादा सुनने को भी मिलती है एज मैंने रिसेंटली अपना नीश, आई आल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स फीमेल फिटनेस, बट पहले मेरे को ये चीज सुनने को मिलती थी कि आपकी तो बॉडी भी नहीं बनी हुई या ये बहुत ज्यादा है, और मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनकी बॉडी तो बनी हुई है, है। पर हाँ जी, कुछ सर पैर नहीं, कुछ भी डालते हैं, कुछ भी लिखते कुछ हैं, भी डालते हैं। और उस पे उसको लोग मान लेते हैं बिकॉज हाँ इसकी सिक्स पैक एब्स हैं, तो ये तो सही कह रहे होंगे जो कह रहे हैं। हाँ, अभी अभी ना कल मेरे को एक मतलब देयर इज दिस गाय, वो मेरे से काफी टाइम से कनेक्टेड है। तो उसने कल मेरे को एक रील भेजी, उसमें उसने बोल रखा है टू गेट द बेस्ट पंप इन योर वर्कआउट, आप वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट में 1 चम्मच नमक खा कर जाओ। ओ गॉड। एंड एंड आई एम श्योर मैं उसकी वाज बॉडी देख के सब लोग मान जाएंगे कि हाँ ये सही हाँ। कह रहा है क्योंकि और उसकी बॉडी है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार तुमने ये एक जनरलाइज्ड एडवाइस दे दी, और किसी भी बच्चे ने जिसको हाइपरटेंशन की दिक्कत है, बच्चे को तो चलो नहीं है हाँ फिर भी, बट एवरीवन इज गेटिंग इनटू फिटनेस और सबको बॉडी बनाना, सबको पंप चाहिए। किसी को भी हाइपरटेंशन, हाई हाँ बीपी की दिक्कत हुई और उसने 1 चम्मच नमक खा लिया, वो तो गया ना वहां जाते ही। वो तो जब तक बिल्कुल। जिम पहुंचेगा वो ही वुड बी इधर लॉस्ट आउट, उसका हार्ट फेल हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ परेशानी उसको पक्का हो जाएगी जिम में। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को बिल्कुल कैसे अथॉरिटी मिल जाती है ऐसा कुछ बोलने के लिए? मुझे खुद लगता है अगर मैं रील बनाऊं ना, तो मैं अच्छे से रिसर्च करूं कि कल को कोई भी एक्सपर्ट आके ये ना बोल सके कि ये तुमने क्या डाल दिया, ये गलत है। हाँ। तो जब तक नहीं कोई साइंटिफिकली बैक्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती, आई डोंट नो, लोग, इट्स दिस इज वेरी इररिस्पांसिबल ऑफ पीपल। एक्चुअली, और फिर ना दीज पीपल कॉल देमसेल्फ इन्फ्लुएंसर्स, और फिर या कितना गलत इन्फ्लुएंस इस चीज का हो रहा है अभी। जैसे बिल्कुल। व्हेन आई टॉक टू, मतलब प्रोस्पेक्ट से मैं बात करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो उन लोगों के डिमांड्स ऐसे अनरियलिस्टिक होते हैं कि अभी जैसे एक लेडी मेरे पास आई, शी वाज सेइंग कि मुझे 1 महीने में 25 kgs लूज करना है। बाप रे। ओ और गॉड। किसी ने बोल दिया कि मैं सच में करवा मैं दूंगा, उनको करवा किसी और ने दूंगा। बोल दिया हाँ, हाँ आई एम कि मैं श्योर। करवा दूंगा। एंड आई आई एम वाज लाइक श्योर। यार ठीक है, 25 kg हम भी लूज करवा देंगे, बट फिर बचेगा क्या बॉडी में? मैं तो बोल सारा दूंगा कि दिन पानी का, और वो निकलेगा। हाँ सब कुछ 10 किलोमीटर दौड़ो आप दिन का, 25 किलो क्या, हाँ। 30 किलो भी निकल जाएगा तो 1 महीने में। बट फिर कोई फायदा नहीं है ना, आप जिस दिन बंद करा आपने, आप दोबारा शूट अप कर जाओगे वहीं पर। और मुझे ऐसा लगता है वी आर एक्चुअली कम्पीटिंग अगेंस्ट सच पीपल। तो अब कैसे compete करो जब कोई किसी को बोल रहा है कि मैं आपको एक महीने में ये रिजल्ट्स दे दूंगा? तो हाउ डू यू नहीं, compete with पर that, you know? आई That आई फील कि ये चीज ना मतलब डिफरेंस क्रिएट करेगी नहीं। आई फील कि इससे हमें, जैसे आप हो गया, मैं हो गया, जो एक्चुअल में नॉलेज बेस्ड वो कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो हम उसको प्रॉपर नॉलेज बेस्ड अप्रोच से हम उसको उसके गोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। एक टाइम के हम्म। बाद ये चीज हमारी ही वैल्यू बढ़ाएगा। बिल्कुल। ये तो मतलब है। आई होप वो जागो ग्राहक जागो वाला है ना, हाँ। मुझे ऐसे लगता है मैं नहीं, अपनी हर रील के नीचे वो उसके लिए तो आई डिस्क्लेमर डाल फील दूं। कि अभी ना इंडिया में एक तो कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ना। या दैट्स अ बिग जैसे वन। आई थिंक उसकी वजह से। अमेरिका में आई गेट क्लाइंट्स, अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना अमेरिका में कि अमेरिका से मेरे को कोई प्रोस्पेक्ट आया, एंड मैं किसी को बोलता हूँ कि मतलब मैं ईरेप सर्टिफाइड हूँ एंड मैंने एस से हम्म। ये सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, और फिर मैं जब उनको अपना प्राइसिंग बताता हूँ या कुछ भी बताता हूँ, तो दे आर लाइक यार तुम कितना चीप उसमें प्रोवाइड कर रहे हो।
हाँ, बहुत सस्ता है तुम्हारा, नया है क्योंकि जैसे अमेरिका में इसकी अगर हम लोग जितनी वैल्यू लेकर अभी बैठे हुए हैं, इतनी वैल्यू लेकर अगर हम लोग यूएस में या यूके में बैठेंगे तो या बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज होती है वहां पे। बिल्कुल दैट्स ट्रू, ये तो है। बट वही है, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात हो जाती है फिटनेस हाँ, वही इंडस्ट्री में वाली ना कई बात, बार। वही वाली बात है। राइट। या तो अभी फिर इससे ही मेरे को ये वो आया कि हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर हैविंग अ बेबी। लाइफ हैज चेंज्ड कंप्लीटली, मतलब कुछ सेम रहा ही नहीं पहले जैसा लाइफ। मतलब बच्चा होने के बाद तो सब कुछ बदल जाता है। आई फील यू नो योर लाइफ इज नॉट योर ओन। पहले मैं कभी भी कुछ भी कर सकती थी, अब मेरी हम्म। लाइफ बच्चे के शेड्यूल के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर मुझे वर्कआउट करना है तो मुझे ऐसे मैनेज करना है अपने वर्कआउट को कि या तो अभी वो सुबह उठा नहीं है मेरा सन तो आई कैन गो गेट अ वर्कआउट, या राइट। फिर अगर मुझे कुछ मतलब मुझे कुछ भी करना है, अब अपने लिए टाइम निकालना है तो आई हैव टू एंश्योर उसका शेड्यूल कैसा है, उसके हाँ, बेसिस पे मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। तो वर यू इनटू फिटनेस अर्लियर या फिर अभी पोस्ट प्रेगनेंसी ही यू स्टार्टेड इट? नो, आई वॉज इन टू फिटनेस सिंस यू नो बिटवीन 2006 2007, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया स्कूल के बाद। हम्म। पर वो बहुत ही स्पोराडिक था, ऐसे बहुत फुल फ्लेजेड नहीं था। उस टाइम सिर्फ एक ही एम था लाइफ में कि फ्लैट स्टमक चाहिए। एंड आई थिंक उस टाइम इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा थी भी नहीं। हम लोग किस, कुछ भी नहीं मैं था। एटलीस्ट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे लिए एक हेल्दी बॉडी की इमेज थी वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, यू नो प्रियंका चोपड़ा एंड राइट। वो राइट। सब जो जिनका आप मिडरिफ देखते थे इन बॉलीवुड मूवीज, राइट। एंड यू नो वो एस्पिरेशनल होता था। तो उसी के इन्फ्लुएंस में हम आके यू नो उसी मैं चाहती थी कि ओके यू नो एक फ्लैट स्टमक होना चाहिए। व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम स्कूल में एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो 9 9 10 10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करने से 5 फीट 2 इंचेस हाइट पे 60 किलोज लेके मैं स्कूल से ग्रेजुएट हुई। एंड दैट वाज नॉट हेल्दी। आई डिडंट यूज टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। तो हम्म। कुछ करती रहती थी मैं, कभी रनिंग कभी जिमिंग, बट ऐसे बहुत ज्यादा कभी नहीं किया कि अ, एक ही चीज में लग गए कि हाँ जिमिंग करी और बहुत सीरियसली करी, कभी कुछ कभी कुछ। आई थिंक 2017 onwards I started taking it very seriously when I planned my pregnancy, that अब कुछ ओके। सीरियस करना है। ठीक है, तो जब आप यस। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर प्रेगनेंसी, द प्रेगनेंसी पीरियड, उस टाइम पे भी यू वर वर्किंग आउट या फिर कुछ ऐसा यस। योगा या कुछ भी, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि एक्सरसाइज मत या करो ड्यूरिंग वर्कआउट ड्यूरिंग बिल्कुल। प्रेगनेंसी। या नहीं, नो, आई वाज वर्किंग आउट एक्चुअली। मैंने अपनी प्री प्रेगनेंसी से ही वेट ट्रेनिंग शुरू करी, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती थी कि, मैंने काफी सुना था कि बच्चा होने के बाद और मैंने देखा भी था अपने अराउंड कुछ लोगों को कि कैसे हमेशा वो थके रहते हैं, कभी बैक एक हो रहा है, कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी शोल्डर में दर्द हो रहा है, बिकॉज ऑफ रनिंग अराउंड आफ्टर द चाइल्ड या बच्चे को हम्म। संभालने से। तो इसलिए मैंने वेट ट्रेनिंग पहले ही शुरू कर दी थी, एंड मैंने कुछ काफी हद तक वो वेट ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रखी प्रेगनेंसी में, ऑफ हम्म। कोर्स विद सेफ्टी मेजर्स, वेट कम उठाना, रेप्स ज्यादा करना, हाँ और जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, योगा, ये सब पे मैंने फोकस किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू स्टे एक्टिव एंड टू कीप माय स्ट्रेंथ अप। राइट। तो आपको लगता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, मैंने तो पढ़ी है ये चीज, बट अगर हम एक जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, सो हाउ डिड इट हेल्प थ्रू योर प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, हाउ डिड इट हेल्प यू स्टेइंग इनटू फिटनेस एंड वर्किंग आउट? मैं बोलूंगी दो चीजें। एक तो स्ट्रेंथ, जिसकी हमने अभी बात हाँ जी। करी कि मेरी माय स्ट्रेंथ रिमेन्ड अप। तो उसकी वजह से राइट। जब बच्चा हुआ तो लॉन्ग आवर्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में जब बैठना पड़ता था, कई बार हम्म। बहुत टाइम बच्चा यू नो डिमांड करता है, तो हम्म। उसमें मुझे कभी बैक एक की प्रॉब्लम नहीं आई। या फिर अगर कभी राइट। कोई पेन हुआ तो वो चला गया विद टाइम, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके। तो स्ट्रेंथ एक तो बहुत अच्छी रही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। आई डेंट लूज माई स्ट्रेंथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई केप्ट इट अप, तो वो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ उसका। सेकेंड, आई फील राइट। जेस्टेशनल डायबिटीज को अवॉइड कर पाई मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम्म। कि मैंने अपनी डाइट पे भी काफी ध्यान दिया, पर आई थिंक कई बार फिर भी
लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, कई लोग आके मुझे बताते हैं कि हम लोग सब वो सही तो खा रहे क्योंकि हैं, मीठा भी ज्यादा नहीं खा रहे। वो तो हार्मोनल या चेंज हो रहा है उस टाइम पे, इतना ज्यादा तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। yes, but I feel that with regular walk and exercise, हम्म। insulin regulation अच्छा रहता है, which is why मेरे को gestational diabetes नहीं हुआ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा thankful हूँ, because sometimes वो after pregnancy भी carry on हो जाता है, आपकी tendency बढ़ जाती है to get to be become pre-diabetic और diabetic, तो टू प्री insulin डायबिटिक, यस। resistance आ जाती है। तो उसको I think मैं control कर पाई, which was very important। ये दो चीजें। ठीक है। तो अगर पोस्ट प्रेगनेंसी की बात करते हैं, लाइक आई सॉ योर पोस्ट की जिसमें आपने एक डाल रखा था कि 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसमें आपका पूरा ऐसे स्टमक वगैरह एक्सपो वो था बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेच हो जाता है तो डेफिनेटली इट वाज लूज एंड आउट और ये सारा कुछ। तो एक चीज तो पहला क्वेश्चन आता है मेरे को बहुत ज्यादा कि स्ट्रेच मार्क्स का क्या हुआ, हम्म। राइट? क्योंकि या प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। और सेकंड चीज आती है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज बोली जाती है, बहुत सारी फीमेल्स को ये चीज बोली जाती है कि आप पोस्ट प्रेगनेंसी कभी भी अपनी प्री प्रेगनेंसी बॉडी पर नहीं जा सकते, ओके। या तो है ना? सो ये दो वन बाय चीजों का वन आई कैसे विल रोल रहा? हाँ हाँ जी, हाँ जी। सी। फर्स्ट है स्ट्रेच मार्क्स। सी स्ट्रेच मार्क्स का ना इट्स वेरी जेनेटिक नाउ। अब वो आपको होते हैं नहीं होते, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कोकोनट ऑयल लगाती हम्म। थी, दिन में 2 बार लगाती थी कि ना हो, बट स्टमक पे थैंकफुली जैसे नहीं हुए, बट हम्म। थाइस पे हुए, लेग्स पे हो गए। तो अब हम्म। आई डोंट थिंक आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज को। लेकिन मुझे ये राइट। लगता है कि अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो ना, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, तो ये एक बहुत छोटी सी चीज होती है। आई डोंट थिंक, मुझे वो बिल्कुल बॉदर भी नहीं करता। हाँ है तो है, अब क्या कर सकते हैं, हो गए, नहीं कंट्रोल कर सके, बट लेकिन हाँ। बिकॉज मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, तो आई थिंक आई हैव दैट सेल्फ लव कि हाँ यार, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग। जो है अब वो है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक अगर आप आई सेल्फ आई केयर ऑल्सो करोगे ना। फील कि ब्लेंड हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, थोड़े टाइम बाद ब्लेंड हो जाते हैं स्किन में, बिकॉज once I started working out and I got into proper weight training या सारा कुछ, I also have a lot of stretch marks on my यहाँ पे एंड बैक पे बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं। बट अब मेरे को ब्लेंड हो गया, अब वो कभी कभार दे गेट विजिबल समटाइम्स, बट ऐसा नहीं है कि हर या टाइम विजिबल रहते हैं। या काफी हद तक वो भी हो जाता है। आई थिंक ऑल्सो थोड़ा सा फोकस भी शिफ्ट हो जाता है ना, आप अपने बारे में जो अच्छा है वो देखने लगते हो। लाइक इफ यू आर हाँ। फिट, you will probably notice how good your chest feels, or your या back feels, or your biceps or your shoulders look, एग्जैक्टली, एक सेल्फ इमेज इम्प्रूव हो जाती है ना वहां पर। self image improve हो जाती है। तो वो मेरे को लगता है, जो चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी जीन्स में अगर है कि आपको हो ही जाता है, तो उस हम्म। पे हाफ करने से बेटर है, उस पे ज्यादा फोकस करने से बेटर है आप वो चीज जो कंट्रोल कर सकते हो उस पे ध्यान दो आप। आई थिंक इट्स ओके, मतलब इट्स नॉट सच अ बैड थिंग टू लिव विद। ट्रू। नहीं मतलब मेरे को ये चीज क्यों ऐसे लगी कि जब मैंने एक बीच में ना मैंने एक Q&A डाला था कि ऐसे करके कि व्हाट आर योर मेजर स्ट्रेसर्स या ऐसे करके फीमेल फिटनेस को लेके। सो उसमें स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत कॉमन वो था कि ठीक है, पोस्ट प्रेगनेंसी हम्म। स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो एक बहुत कॉमन चीज थी, जो या माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वी आर इनटू वर्कआउट्स एंड वी हैव अ बेटर सेल्फ इमेज फॉर अस, और हम लोग पहले से हैं या उस चीज में। मतलब आप तो, या बिकॉज आई डेफिनेटली आई कैन नेवर एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी, बट आपने जैसे आप पहले से फिटनेस में थे, सो यू हैड दैट सेल्फ इमेज, राइट? बट या अगर कोई ऐसा है जिसने पोस्ट जो प्री प्रेगनेंसी शी वाज फिट एंड शी वाज वेरी मच इनटू, मतलब नॉट इनटू वर्कआउट्स बट शी वाज एक्टिव एंड सारा थिन। कुछ था, हाँ। पोस्ट प्रेगनेंसी शी गेन वेट एंड नाउ उनको स्ट्रेच मार्क्स हो गए, सो दैट बिकम्स हम्म। अ इनसिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल। राइट? या फिर एंड पोस्ट अंडरस्टैंडेबल। प्रेगनेंसी वेट गेन ही इनसिक्योरिटी हो जाता है एक। या सो हाउ टू या डील विद दैट इनसिक्योरिटी इन योर? तो आई थिंक पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी आप कभी प्री प्रेगनेंसी बॉडी में नहीं जा सकते, तो ये सच नहीं है। हर एक की बॉडी अलग होती है। राइट। आई थिंक, आई डोंट थिंक फैट लूज करना इतना कोई इम्पॉसिबल चीज है। यस, टाइम लगता है, हो सकता है आपके गोल्स भी चेंज हो जाए कई बार अलोंग द वे, कि आप सोचो कि हाँ। यार
मैं उतना पतला होना भी नहीं चाहती, मैं इसमें खुश हूँ, ये मेरे लिए मेंटेनेबल है, आई एम हैप्पी इन दिस साइज दैट आई एम नाउ, बिकॉज आई नो आई एम फिट एंड हेल्दी। तो ये नैरेटिव चेंज करने की बहुत जरूरत है एक तो। और मुझे दूसरी बात ये लगती है, अगर आप चाहते हो तो आपकी अगर प्रेगनेंसी से पहले सिक्स पैक एब्स नहीं थी और आप बहुत कोशिश करो और मेहनत करो, तो वो प्रेगनेंसी के बाद ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, ये बहुत बड़ा मिथ है। आप सी वेट लूज करना ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं है। टास्क नहीं है, डेफिनेटली नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एंड सेकंड, मुझे लगता है कि अगर जैसे आपने बोला, आपने जो एग्जाम्पल दिया, काफी आई थिंक किसी के साथ, मतलब ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर किसी ने कभी वर्कआउट नहीं किया पर वो बहुत लीन था, या हम्म। और बाद में, तो अगेन द आंसर इज सेल्फ इमेज इंप्रूव करने का, सेल्फ लव इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, अपने ऊपर टाइम और ध्यान देना। और वो सबसे बड़ा बेस्ट सेल्फ केयर है, अपना अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना। एंड डेफिनेटली आई थिंक दैट विल रियली हेल्प एनीवन। सो बट डू फिर इट, वो क्वेश्चन आ जाता है ना, फिर बहुत लोगों के साथ एक क्वेश्चन आ जाता है कि ठीक है, हम लोग टाइम निकाले कैसे? वी हैव टू गिव टाइम टू द फैमिली, वी हैव टू गिव टाइम टू द बेबी, वी हैव टू वर्क। और बहुत मतलब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डेफिनेटली हम, मेरे लिए बोलना ये आसान है कि कितना है, आपको 40 मिनट ही तो निकालने हैं दिन में। तो बट कहीं ना कहीं आपको पता नहीं ना कि बच्चा वो 40 मिनट आपको कब प्रोवाइड करेगा। ओके, सी इसके दो तीन आंसर है। देखो, आई 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 कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, हर एक की फैमिली सिचुएशन अलग होती है। कईयों के पास, कोई हाँ न्यूक्लियर जी। फैमिली में रहता है, उनके पास बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, तो वो हम्म। बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते। बट हर सिचुएशन, अगर आप कोई सिचुएशन बदलना चाहते हो, आई फर्मली बिलीव उसका जरूर सोल्यूशन होता है। अगर आप कहीं जिम नहीं जा सकते, तो ऐसा कौन सा होम वर्कआउट आप नहीं कर सकते 40 मिनट निकाल के अपने बच्चे को साथ में लिटा के। मैं जिसको आई फील, अगर आपके पास 40 मिनट भी नहीं है और आप 15 से 20 मिनट भी शुरू करते हो, हम्म। तो वो भी बहुत है। जस्ट स्टार्टिंग टू टेक आउट द स्मॉल अपॉर्चुनिटी विंडो ऑल्सो, वट एवर यू गेट ड्यूरिंग द डे इज इम्पोर्टेंट। राइट। बट जीरो एक्सरसाइज से, ये जानना कि जीरो एक्सरसाइज से बेटर है 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, इस चीज को ऑब्जॉर्व करना बहुत जरूरी है। पर मैं, आई डोंट नो यू मे ये हम आप रखोगे कि नहीं पॉडकास्ट में, पर मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट भी नहीं मिल सकते दिन में, अनलेस एंड अनटिल नहीं, कोई मेडिकल इशू है। मैं डेफिनेटली रखूंगा, ये चीज तो रखने वाली है। और पता है, मैं आपसे पहले आई यूज्ड टू फॉलो वन इन्फ्लुएंसर इन 2019 एंड 20, मतलब तब तक मैं आई वाज नॉट फुल फ्लेज इनटू फिटनेस की मेरे को ट्रेनर ही बनना है। आई वाज परस्यूइंग माय बीटेक बैक देन। तो उस टाइम पे एक ओके, एमिली स्काई करके एक इन्फ्लुएंसर या है, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया। एंड उनका कुछ कॉस्मेटिक्स का भी ब्रांड है, राइट? एंड हाँ। आई गेस नाउ शी हैज 3 babies, अच्छा, राइट? थ्री, थ्री, अच्छा लास्ट आई रिमेम्बर शी हाँ। हैड टू। या सो टू, मेरे को आई एम नॉट श्योर अभी, बट हाँ, जब उनका सेकंड बेबी जब उन्होंने प्लान किया था, उसके बाद आई एक्चुअली लॉस्ट की, मतलब मैंने कहीं रास्ते में वो अनफॉलो कर दिया या कुछ हुआ, उसके बाद आई डेंट फॉलो हर बैक। बट ड्यूरिंग द टाइम शी, फॉर द एंटायर 1.5 year when her baby was born, the first baby, सो एक तो मैं उनके बच्चे की आंखें इतनी सुंदर थी, बोथ आई ऑफ नो, देम हैव सो या क्यूट आईज। सच मैं उसको ब्यूटीफुल देखने के आईज। लिए, उस बच्चे को देखने के लिए मैं उनको फॉलो कर रहा था। एंड मतलब द थिंग आई सॉ इन हर रूटीन वाज कि अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, सो शी यूज्ड टू जस्ट पुट हर इन दैट, वो क्या बोलते हैं उसको जिसमें बच्चे को लेके, वॉकर बोलते हैं इसको। या हाँ, सो वो उसको जो लेके शी यूज्ड टू, बाउंसर, ना 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 ना, जो बाउंस नॉट होता दैट, रहता है, नॉट वॉकर जिसमें जिसमें बच्चा बच्चे को वॉक कर, लिटा लेते हैं ना, जिसमें बच्चे को लिटा लेते हैं प्रैम, ना, एंड देन यू कैन। हाँ। हाँ, सो उसको लेके शी यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक फॉर 10 kilometers या ऐसा करके कुछ। या एंड उससे क्या हो रहा था, शी वाज एबल टू स्पेंड टाइम विद द बेबी एंड शी वाज आल्सो एबल टू फोकस ऑन हर वर्कआउट्स। एंड कि ठीक है, या एटलीस्ट कुछ नहीं हो रहा तो एक्टिविटी लेवल्स हैं मेरे सस्टेन्ड, कि यस, 1 1.5 घंटे यस, में 2 घंटे में मैंने 10 किलोमीटर वॉक किया। दैट वाज समथिंग या गुड। एंड मोर ओवर, यू नो, एक बेबी भी है, एक आपका कॉस्मेटिक ब्रांड भी चल रहा है जिसको आप प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, या राइट? बीइंग बिल्कुल, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप, मुझे पता है कि एक ब्रांड को मैनेज करते हुए चलना कितना मुश्किल काम होता है, बहुत, राइट? जैसे बिल्कुल, आप मतलब एक जॉब में फिर भी आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम ऑफ वर्क होता है कि ठीक है, 9 to 5 है या या 9 to 6 है,
राइट? बट अभी जैसे मेरा है, मेरा सुबह, if someone sees my schedule, मेरा दिन सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है एंड आई Yeah, हैव नो टाइम कि मेरा दिन किस टाइम खत्म होगा। true. And that's entrepreneurial life. हाँ, And I think it's 24/7, 365. There are no 365। weekends, there are अभी no मैं Sundays. घर पे गया था, सो आई मेरी ये आदत है, जब मैं बर्नआउट हो जाता हूँ ना, फिर मैं प्रोक्रास्टिनेशन शुरू कर देता हूँ बहुत ज्यादा। Mm. फिर वो मेरा 1-2 दिन का, 3 दिन का ऐसा फेज आता है कि जिसमें मैं कुछ काम नहीं करता, फिर मैं बस I पड़ा get it. रहता हूँ। Yeah. तो वो I, वाला फेज मेरा आने वाला था। आई सेंस्ड इट अर्लियर। मेरा पहला दिन गया जिसमें मैं ना चीजें टाल रहा था। आपको पता लग जाता है, एक आपका अंदर से कॉन्शियस हिट करता है कि ठीक है, अब yeah. आप चीजें टाल रहे हो, ये तेरा बहाना है, ये तेरे को पता है कि ऐसा सच में है नहीं। तो Yeah. तो वो चीज मैंने सेंस करी, मैंने उस चीज को वापस पुट आउट करा, और मैंने ना एक्चुअल में टाइम निकाला फिर भी वर्कआउट के लिए। मतलब मैं सुबह 7 Yeah. बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक लगातार काम कर रहा था, एंड आई यूज्ड टू गो टू द जिम एट 8:30। Hmm. और फिर See, उसके there, there, बाद, there is a will. There is a way. हाँ, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। और अगर वर्कआउट करना ही है ना, तो आई फील देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आप एक्साइटिंग वर्कआउट्स कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि Yeah. आपको हर तरह में जिम जाने की जरूरत है, या फिर आपको पुशअप्स करने की जरूरत है, या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत है। Yeah. सो दैट बिल्कुल. ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड यू स्टार्ट आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी? So, what prompted me to start was, एक तो मैंने शायद अपनी बॉडी को इतना चेंज्ड पहले कभी भी नहीं देखा था। तो राइट। मेरे को उसको देख के आई डिड नॉट यूज टू फील गुड अबाउट इट, वेरी ऑनेस्टली। जब मैं अपने आप को मिरर में देखती थी और मैं देखती थी कि मैं कोई टाइट टॉप पहनती हूँ तो उसमें कैसे मेरा स्टमक बल्ज हो रहा है। आफ्टर प्रेगनेंसी टेक्स टाइम फॉर स्टमक टू गो इन। इनफैक्ट मुझे याद है हम एक डेफिनेटली। ट्रिप पे गए थे, 5 महीने हो चुके थे हमें, मुझे बर्थ दिए हुए, और मैंने एक ओके। बड़ी बॉडी हगिंग ड्रेस पहनी हुई थी। तो मुझे वहां पे ट्रिप पे किसी ने पूछा, आर यू प्रेग्नेंट? तो मुझे तब भी वो लगा कि अरे अभी तक स्टमक इतना बाहर है, 5 महीने हो चुके हैं बेबी हुए हुए। तो हम्म। तो मुझे एक तो वो नहीं अच्छा लगता था, तो दैट प्रॉम्प्टेड मी। सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैंने घर पे ही कुछ यूट्यूब वीडियोस से पोस्ट प्रेगनेंसी लिंक्स खोल के हम्म। 6 वीक्स आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत कुछ कुछ करना शुरू करा, बहुत ही धीरे धीरे। जैसे पुशअप्स नहीं किए तो नी डाउन वाले पुशअप्स कर लिए, और कुछ पेल्विक राइट। फ्लोर एक्सरसाइजेस करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, बस इतना कि थोड़ी राइट। बहुत मूवमेंट हो। थोड़ा बहुत वॉक पे जाना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब जैसे ही 12 वीक्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, हम्म। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी, नहीं तो ये वेट कभी वापस नहीं आएगा, वापस नहीं जाएगा, निकलेगा नहीं। हम्म। एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था 6 मंथ्स बाद, 6 मंथ्स की हम्म। लीव थी मेरी। तो आई आई डेंट नो कि देर इज अ सेल्फ इमेज जो मेरे दिमाग में थी अपनी, और मेरे को हाँ। लग रहा था मैं वापस ऑफिस कैसे जाऊंगी, क्योंकि ऑफिस में भी सब मुझे एक तरीके से जानते थे कि हाँ ये फिटनेस में है, और ये ऐसे दिखते हैं, और हम भी अपने आप को एक इमेज एसोसिएट कर लेते। तो मुझे एक वो लगता था कि जब मैं ऑफिस जाऊंगी तो मुझे वैसा ही दिखना है जैसी मैं दिखती थी। तो 12 वीक्स बाद फिर मैंने कल्ट ज्वाइन किया, जैसे ही जिस दिन ओके। मेरे 12 हफ्ते पूरे हुए। एंड हम्म। कल्ट मैंने बहुत इंजॉय किया। क्यों वो मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसमें मुझे पता था कि एक बार क्लास बुक कर दी तो कोई बहाना नहीं है, हम्म। फिर जाना ही है। नहीं तो क्लास गई, राइट। 1 घंटे से पहले पहले आपको क्लास कैंसिल करनी होती है, तो इससे पहले वो ईमान बदले, मैंने सोचा ये आपको। बेस्ट है, ये डंडा है सर पे। सो दैट वर्क्स फॉर मी, मतलब so that's the solution I found. तो जब भी मुझे ऐसे दिन में लगता था कि अब मेरा बेबी सो गया है, मैं फटाफट क्लास बुक करती थी और निकल जाती थी। तो यूजुअली एक्चुअली वो शाम को होता था जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते थे, मुझे लगता हम्म। था कि अब ये इनको बेबी को देख लेंगे, तो मैं फटाफट जिम हो आती हूँ। सो ऑफ कोर्स पार्टनरशिप, आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ऐसी जरूरी है, सिचुएशन में। डेफिनेटली। सो ही वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड या सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। मैंने धीरे धीरे फिर वहाँ पे वेट लिफ्टिंग शुरू करी। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मैं वेट्स उठाऊंगी, जिम जाऊंगी, तो मेरी मिल्क सप्लाई कम हो जाएगी।
तो ऐसा कुछ भी हाँ, नहीं हुआ। मैंने अपने ये भी बेबी को सुना है, और एक ये भी होता है वेट ट्रेनिंग, चलो ये तो फिर भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि आपकी मिल्क सप्लाई कम हो जाएगी। एक ये आ जाता है कि आप यू स्टार्ट लुकिंग लाइक मेन। या मतलब बताओ, इतना आसान होता अगर तो क्या ही बात होती। मसल्स बनाना। नहीं, तो मसल्स बनाना भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों आई फील कि जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स है ना, बिकॉज दे हाँ एक बैक साइड होती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टिल 90% ऑफ द बॉडी बिल्डर्स इन इंडिया दे डोंट कम आउट दैट दे आर यूजिंग एनाबॉलिक्स, या दैट्स ट्रू। राइट, एंड विच या क्रिएट्स एन इम्प्रेशन जिसका फिर जिसके बाद ना जिसका सारा ब्लेम जाता है या तो सप्लीमेंटेशन पे या फिर वेट ट्रेनिंग पे। या या बिल्कुल, आई नो, दैट्स ट्रू। क्योंकि ये बहुत सुनने को मिलता है कि जिम जाओगे तो मोटे हो जाओगे, जिम जिम छोड़ हाँ, दोगे तो मोटे हो जिम जाओगे, छोड़ दोगे तो मोटे हो जाओगे। हाँ, जिम छोड़ दोगे तो मोटे हो जाओगे, प्रोटीन मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। हाँ सो ट्रू। एज अ बहुत मिथ है। न्यूट्रिशनिस्ट, जब आप किसी से बात करते हो एंड इफ यू सजेस्ट समवन सम काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हैव यू बीन गेटिंग कि किस तरह से लोग सप्लीमेंटेशन को अभी ले रहे हैं आपके? सेम, मेरे को भी ऐसे ही सवाल, मुझसे ऐसे ही सवाल पूछते हैं लोग कि अगर मैं प्रोटीन खाऊंगी तो मेरे को डाइजेशन इश्यूज हो जाएंगे, या फिर मैं ऐसे बिल्कुल बल्क अप हो जाऊंगी जैसे हम्म। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर लगने लगेंगे। तो सप्लीमेंटेशन के सारे ये बहुत सारे मिथ आते हैं कि प्रोटीन तो केमिकल है, केमिकल कैसे खा लें, हम्म। आ, ये सही नहीं है बॉडी के लिए, ये हार्म करेगा मुझे लॉन्ग रन में, मेरे को मेरी किडनी खराब हो जाएगी प्रोटीन खाने से ज्यादा। ये सब हम्म। तरह के मिथ आते हैं, ज्यादातर राइट। प्रोटीन को लेके ही आते हैं सप्लीमेंटेशन में। राइट, तो इससे आगे तो नहीं, एक टाइम तक व्हेन देयर वाज नॉट दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक जो इंफॉर्मेशन वाला फेज आया ये आफ्टर 2016 ही आया, व्हेन यूट्यूब वाज डिस्कवर्ड और ये सारी चीज आ गई, व्हेन वी हैड एन या प्रॉपर एक्सेस टू इंटरनेट। उसके बाद ही ये इंफॉर्मेशन आई कि ठीक है, अब बहुत सारी मिथ ब्रेक हो रही हैं या प्रोटीन के ऊपर बहुत सारी या इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल आई फाइंड कि डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कई कई जगह पर वे प्रोटीन या सप्लीमेंटेशन के लिए। या What could be the reason, according to you, what could be the reason behind that? लैक ऑफ नॉलेज। मैं लोगों को यही बोलती हूँ, जो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है वो डॉक्टर नहीं कर सकता, और जो डॉक्टर का काम है वो न्यूट्रिशन कोच नहीं कर सकता। सो आई थिंक एवरीबडी, इसका कहते हैं ना, यू शुड स्टे इन योर लेन। हम्म। आई डोंट नो व्हाई पीपल अज्यूम कि डॉक्टर है तो उनको न्यूट्रिशन के बारे में पता ही होगा। मैंने फिजियोथेरेपी पढ़ी है, मेरे को कभी किसी ने न्यूट्रिशन का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया फिजियो में। और फिजियोथेरेपी और एमबीबीएस के कोर्सेज में फर्स्ट ईयर तो सेम ही होता है, एंड काफी हम्म। ओवरलैप है सब्जेक्ट्स का। कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता डॉक्टरी में जो मैं बोलूं कि उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की नॉलेज हो जाती है। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज आपको न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट से ही मिलेगी, सो इट्स जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। राइट। इज दैट पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर? नहीं नहीं, दैट्स डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि नहीं पता है मेरे को ये चीज इसलिए वो भी थी क्योंकि आई फील कि हम लोग की लाइन ना इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा सफर करती है या ट्रू। कि फिटनेस ट्रेनर्स के एक तो जिम की पहले पहली ऐसी इमेज बनी हुई है कि आपका वर्कआउट करोगे जैसे जिम छोड़ दोगे तो मोटे हो जाओगे, ठीक है, देन उसके बाद एक एनाबॉलिक्स की वजह से पहले ही ब्लेम आ जाता है कि किसी ने एनाबॉलिक्स या यूज करके अपना रिवील करा नहीं, एंड फिर बाद में ब्लेम आ जाता है सप्लीमेंटेशन के ऊपर, या राइट, एंड फिर ट्रू। अगर आप किसी को कुछ सप्लीमेंटेशन रिकमेंड करते हो ना, सो दे कम आउट टू यू कि यार शायद पैसे कमाना चाह रहा है या शायद या ये चीज है, आप मेरे को सप्लीमेंट लेने को क्यों बोल रहे हो, क्योंकि डॉक्टर या ने मना कर दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि यार मेरे को नहीं, नहीं ये आप वे प्रोटीन मत लेना, वे प्रोटीन से किडनी फेल हो जाती है, क्रिएटिन से किडनी फेल हो यस जाती है। यस यस ट्रू। किडनी पता नहीं आई कैसे नो। फेल हो रही है, आई डोंट नो किडनीज कैसे फेल हो रही हैं लोगों की, मतलब अभी बहुत या रिसेंट इंसिडेंस था एक, मेरे को एक बंदा बोलता है उसमें कि प्रोटीन लेने से किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है ब्रो, आई थिंक क्या ये बहुत ही क्या ज्यादा बात कर रहे हो आप? कॉमन है। मुझे भी लोग बोल चुके हैं ये। जब मेरे को मुझे वो लोग वे प्रोटीन लेते हुए देखते हैं तो वो मुझे भी ये बोलते हैं हम्म। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। अरे इतना कौन सा प्रोटीन खा रही हूँ मैं जो ये सब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको हाँ। किसने बोल दिया प्रोटीन खाने से? आपने कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ा होगा किसी का जिसमें लिखा था उसने प्रोटीन खाने से किडनी
खराब हो जाती है। एक तो ये व्हाट्सएप व्हाट्स पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट्स है ना हाँ, सारे, व्हाट्सएप तो यूनिवर्सिटी बहुत वो बहुत बड़ी हानिकारक होती जा प्रॉब्लम रही है। है। एक ना, एक और मैंने बीच में एक बहुत मतलब ऐसा वो सुना था, बड़ा मतलब मैं उसको सुन के ना बड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था, एक मिथ को सुन के, कि अगर आप बहुत रेगुलरली प्रोटीन खा रहे हो ना, एक तो पहले वो आयुष्मान खुराना वाला वीडियो आया था या कि वो द बायोलेन प्रोटीन, ने उसको हाँ, द स्कूप ऑफ रीपोस्ट प्रोटीन किया स्टेज था इन योर बॉडी फॉर फॉर अराउंड 3 years. 25 days। 3 years No, no, बोला था, it's अच्छा मुझे लगा it's it 25। said it takes 3 years to digest a scoop of protein. माय एंड गॉड। वो वीडियो आया और उसके बाद ना मेरे को इतने डीएम शूट हुए, उसके बाद अचानक से वो वीडियो, क्योंकि सबने एक बार वो पीक हुआ, उसके बाद वो सबने पकड़ लिया, वो वीडियो फटा, और उसके बाद हर डिफरेंट पेज से, मतलब ऐसे 50 डिफरेंट पेजेस ने उसको पोस्ट किया होगा, माय गॉड। 6 पैक एब्स इंडिया और ये सारी चीज की, ऐसा बोल रहा है, मतलब दे पोस्टेड इट कि देखो मजाक में क्या बोल दिया ये, why is अच्छा। he saying things like this. या और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, और मेरे पास एक मैसेज आया, सर ऐसा होता है क्या, ऐसे मेरे को आगे से प्रोटीन नहीं लेना। मैं कहा देख ब्रो, मैं पिछले 6 साल से प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, अगर मैं, या मेरा छोटा छोटा भी मैं हिसाब लगाऊं ना, और मैंने जो कैलकुलेशन करके, मैंने उसको, फिर मैं उस दिन पूरा उसमें आ गया था फोर्स में, मैंने उसको पूरा कैलकुलेशन करके बताया कि एक साल या के अगर मैं ऑन ऑन एन एवरेज भी लगाता हूँ, तो मैं अगर भी 6 डब्बे भी हाँ खा रहा हूँ, ठीक है, तो या 6 डब्बे 2.5 kg वाले, उसके हिसाब से एक उसमें 100 स्कूप हो गए, 100 स्कूप्स के हिसाब से 600 स्कूप्स मेरे साल के हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे या पूरा एक कैलकुलेशन करके इतना बड़ा मैसेज उसको लिख के भेजा कि भाई मैं अगले 58 साल तक अगर प्रोटीन ना खाऊं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है। या 58 साल नहीं, 58 ट्रू। जन्म, सॉरी, 58 लाइव्स, माय नेक्स्ट 58 लाइव्स वुड गो वेरी स्मूथली इफ आई डोंट टेक प्रोटीन एनीमोर। माय गॉड। एंड आई फिर एक वो नुसरत भरूचा वाला वीडियो भी अगर आपने देखा होगा, डेयरी छोड़ दो, जिसमें ये छोड़ दो। हाँ डेयरी छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। माय गॉड। और एक सानिया मिर्जा ने भी डाला था जिसमें वो चावल खाए उन्होंने, और हम्म, उसके बाद वेइंग मशीन पे चढ़ी और एकदम से शी इज लाइक ओ माय गॉड, मतलब चावल खा के देखो वेट बढ़ गया। वेट बढ़ गया। मैंने कहा यार ये, मैं कहती हूँ चलो एथलीट्स और ये सब से तो मैं फिर फिल्म स्टार से तो मैं फिर भी सोचूं एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, पर अगर एथलीट्स भी ऐसे करेंगे तो राइट, मतलब अगर नहीं तो एथलीट को भी नहीं पता तो हाउ डू यू नॉर्मल जनता थिंक से तो बिल्कुल। बॉलीवुड का या इन चीजों का कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत फैंसी चीजें ये लोग दिखा देते हैं, या है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि, मतलब बहुत सारी फीमेल्स को ये लगता है कि दे एक्चुअली नीड टू पनिश देमसेल्व्स, ऐसे कि ठीक है हमको 4 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, 3 घंटा या वर्कआउट करना पड़ेगा, जैसा खाना ये लोग खाते हैं वैसा खाना खाना पड़ेगा, राइट। बट या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में, मतलब आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन करी, आपने एब्स भी बनाया, आपने पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस भी किया, एंड नाउ यू डूइंग योगा एंड यू लुक ग्रेट, मतलब एक ग्रेट शेप जो एक थैंक यू। एज अ फीमेल किसी को कोई डिजायर कर सकता है, राइट। तो थैंक यू। हाउ डिड योर जर्नी गो, कितने एग्जॉटिक फूड्स आपने खाए, कितने दिन के लिए आपने चावल रोटी छोड़ी, या कितने दिन आप जिम में 3 घंटा बिताते थे? मैंने कभी जिम में 3 घंटे नहीं बिताए पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैं जिम में 3 घंटे थी। बस मैंने एक चीज करी है, डिसिप्लिन से 15 महीने लगातार वर्कआउट किया है, बिल्कुल नहीं छोड़ा। हाँ एंड जी। शायद कोई ऐसा हफ्ता होगा जब मैं पूरा हफ्ता जिम नहीं गई, शायद कोई ऐसा हफ्ता होगा जब मैं सिर्फ 2 बार जिम गई, बट लेकिन डिसिप्लिन, चाहे वो सुबह 5 बजे उठ के ऑफिस से पहले, बच्चे के उठने से पहले, या फिर बच्चे को सुलाने के बाद रात के 10 बजे, 9 बजे की क्लास में कल पे पहुंची, बट सिर्फ वही करा है। मैंने कभी कोई चावल नहीं छोड़ा, रोटी नहीं छोड़ी। मैंने कभी शुगर को ऐसे नहीं किया कि मैंने यू- 2 1.5 महीना मैंने कीटो ट्राई किया था जो मैं मिजरेबल थी। आई वॉज सो सैड एंड सो मिजरेबल, थिंकिंग तब वो फैट डाइट थी। मेरे को लग रहा हम्म, था कि इससे ज्यादा किसी ने ऑफिस में किया, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, लाइक चलो ये ट्राई किया जाए। हॉरिबल, इतना आई आई वाज सो अफ्रेड। मैंने अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया उसके बाद, लेकिन मैं कराती तो पक्का सब कुछ हिला हुआ आता। तो
बस वो गलती करी, एंड आई डोंट रेकमेंड इट टू एनीबडी। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक मैंने कभी भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई भी चीज छोड़ी, इंक्लूडिंग शुगर, इंक्लूडिंग माय फेवरेट फूड्स लाइक दाल चावल रोटी, सब कुछ यही खा खा के मैंने वेट लूज किया है। बस उस ध्यान से खाया है, माइंडफुली खाया है, भूख से कम खाया है, सब्जी बहुत खाई है, फ्रूट्स हम्म। बहुत खाया है, प्रोटीन बहुत खाया है, और जिम में कंसिस्टेंटली शो अप किया है। कंसिस्टेंटली, बिल्कुल जीरो मोटिवेशन। ऐसे ऐसे दिन भी गई हूँ जब लग रहा था कि अभी बस सो जाऊं, ऑफिस से आई हूँ, बट अपने आप को हाँ, पुश किया जाने के लिए। वो सर पुश घूम रहा बहुत था। ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता यस, उस दिन ये सोचा है। कि एंड आज ना सिर्फ, आज बिल्कुल वेट नहीं उठाऊंगी, आज सिर्फ बारबल बारबल पे कोई वेट नहीं डालूंगी, बस थोड़ा बहुत हाथ हिलाऊंगी, कर लूंगी बस, लेकिन चली जाती हूँ। एंड आई डोंट नो आपके साथ ये चीज होती होगी या नहीं, बट जब आप जिम पहुंच जाते हो ना और एक या दो या सेट्स करने के बाद, फिर उसके या बाद होता है कि यार ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, आज वर्कआउट ऐसे नहीं छोड़ा बिल्कुल, जाएगा, करके ही एग्जैक्टली यही जाऊंगा होता है। पूरा। बिल्कुल, सो एग्जैक्टली यही होता है। आई ऑल्सो यूज टू वर्क आफ्टर, मतलब मेरे थर्ड ईयर के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन मानेसर। अच्छा, मानेसर में ओके एएस के ऑटोमोटिव्स में मैं कर रहा था। आई यूज्ड टू वर्क देयर फॉर ओके। टू मंथ्स। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज लिविंग अलोन। और मैकेनिकल में ऐसा होता है कि एक तो 9 to 5 तो आपको बोला जाता है, ठीक है, हम्म। उसके बाद आप 6 बजे से पहले तो वैसे भी कोई कंपनी से नहीं निकल सकता। एंड छह ओके। बजे भी क्योंकि आप नए हो, तो 6 बजे आपको कोई रिपोर्ट दे दी जाती है बनाने के लिए, मेरे को दे दी जाती थी कि ये वाली रिपोर्ट बनानी है, कल सुबह मेल होनी है ये। ठीक है, तो अब 8 बजे मैं हम्म। वो करके ऑफिस से निकल रहा हूँ, ऑफिस से घर जाके फिर मैं अपना जो भी, मतलब मैं आई वॉज, मेरे को वहां का बेनिफिट ये था कि मैं बिल्कुल बॉइल्ड खाना खा रहा था, अच्छा। क्योंकि मेरे पास एक स्टोव था, बस वो जो छोटे वाले सिलेंडर आते हैं ना, वो या स्टोव था, और मेरे पास 2 भगोने थे बस। अब मुझे जो करना है उसी में बनाना। तो या तो मैं उस पे चिकन उबाल लिया, मैंने उस पे अपनी वेजिटेबल्स उबाल ली और उसमें नमक डाल के आई हैड दिस फॉर, मतलब ये मेरी एक मील तो पक्की थी दिन की। और अच्छा। उससे अलग मैं कुछ शेक वगैरह बना के ले जाता था, आई हैड अ ब्लेंडर या सारा कुछ। तो बट अगर खाना बनाने की बात है ना प्रॉपर, तो या तो मैं बाहर खाऊंगा, या फिर मैं हम्म। ऐसे बना के लेके जाऊंगा, उबला हुआ ओके। खाऊंगा। तो वो चीज चल रही थी। बट रात को मैं 8 बजे वहां से निकल रहा हूँ, फिर आई यूज टू स्टे इन सेक्टर 10। तो अच्छा। मानेसर से सेक्टर 10 बाइक पे आपको 20 मिनट लग ही जाते हैं, 20 से 25 मिनट। और या अगर गुड़गांव में बारिश होगी है तो फिर तो आप भूल जाओ कि आप घर पहुंचोगे भी। या तो ट्रू। ठीक है, तो मैं पहुंचता था 9 साढ़े 9 बजे पहुंच रहा हूँ, फिर खा पी के मैं दोबारा सोता था। अब होता क्या था, मेरे को सुबह 4 बजे उठ के जिम जाना होता था। अगर आप इतना थके हुए आओ ना, आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाओगे। ट्रू। एब्सोल्युटली, तो बहुत मुश्किल है। मैं अगले दिन, फिर जब मेरा 2 दिन से नींद भी पूरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं हम्म। अगले दिन, मैंने आई यूज टू डू दिस कंसिस्टेंटली कि मेरे को अगले दिन जिम जाना ही जाना है। तो चाहे मैं या फिर रात को 8 बजे आऊँ, चाहे मैं 9 बजे आऊँ, चाहे मैं अगले दिन शाम को 6 बजे ऑफिस से निकल जाऊँ, आई यूज टू रीच द जिम फर्स्ट। क्योंकि मेरा ये था कि अगर मैं घर पे जाके अब जाके बेड पर लेट गया ना, तो फिर या मैं नहीं उठूंगा। मुझे पता है कि आई एम सेल्फ अवेयर ऑफ द एब्सोल्युटली। फैक्ट कि मैं इतना आलसी हो जाऊंगा घर जाकर कि मैं नहीं या उठ के जाऊंगा दोबारा जिम। सो आई यूज टू कैरी माई या क्लोथ्स इन माई बैग, और मैं जिम जाता था वहां से डायरेक्ट। और या बहुत दिन तक, क्योंकि सब लोग मतलब सब लोग वो थे, मैरिड थे ऑफिस में, और आई वॉज इन टू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट था मेरा। तो ओके। हमारा मोस्टली डेस्क जॉब होता था। ओके। ठीक है, मशीन्स वेरी में जाना पड़ता सेडेंटरी। था, मशीनरी एरिया में। बट वो वो लोग लेके आते थे घर से पूरा 2 सब्जियां और ये सारा कुछ, वो एंड मैं टीयर वहां वाला। पे, हाँ, मैं उबला हुआ खा रहा होता था वहां पे, उबले हुए अंडे खा रहा हूँ या चावल खा रहा हूँ। मतलब हमको ऑफिस से मिल जाता था, ऑफिस में यू हैव टू पे 30 रुपीज और उसमें मिल जाता था एक मील। बट जब आप उबले हुए अंडे खा रहे हो, फिर आप शेक निकाल के खा रहे हो, और फिर उसमें बैग में से कपड़े निकल निकल के गिर रहे हैं, आपके शॉर्ट्स या बाहर निकल के गिर रहे हैं, आई यूज टू गेट वेरी काइंड ऑफ दिस फनी वाला वो बनता था कि ये देखो उसको तो वहां पे या नाम भी पड़ेगा था पहलवान। अच्छा। क्योंकि जिम, पहलवान आ गया जिम में, जिम जाएगा अब यहाँ से, आज ये, अच्छा आज तो ये। तो एंड आई फील मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना सपोर्टिव था, मतलब मेरे जो सीनियर थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, वो, उन्होंने, उनका और कुछ नहीं होता था तो वो ना मेरे लिए स्प्राउट्स ले आते थे।
अच्छा, हाउ वो स्वीट। वो अपने घर से स्प्राउट्स ले आते थे, तो वो चीज का भी बहुत सपोर्ट रहा था। बट ओके। अगर बात करते हैं ऑफिस से और इसकी बात करते हैं फिटनेस की, तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट सिंस यू यस। वर इनटू वर्किंग आउट अर्लियर एंड यू वर आल्सो इनटू यू नो working as an HR. So या how did you manage your eating habits and everything along with your office diet को और उसका एक ही तरीका है दैट मैं अपने जब ऑफिस में जाना होता था हम्म तब की तब मैं घर से अपना स्नैक्स वगैरह सब लेके जाती थी जो भी मैंने ड्यूरिंग द डे कंज्यूम करनी है। उसके लिए मुझे पता है कि मुझे ऑफिस निकलने से पहले 20 मिनट निकालने हैं अपना सारा लंच पैक करने के लिए। अगर यहाँ तक कि मैं अपना बटर मिल्क भी खुद बनाती थी, लो फैट दही का, घर घर की दही का। तो अपना बटर मिल्क छाछ टम्बलर में डालनी है। तो ये सब फिर वही मैनेज करना पड़ता है, मतलब देयर इज नो वे अराउंड इट। अगर आपको करना है विद अ फुल टाइम जॉब, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको, सॉरी, उसके लिए जैसे आपने कहा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट आई यूज टू इंश्योर कि मैं अपने साथ फ्रूट, अपना बटर मिल्क, अपना लंच जो भी बना है घर पे। सो आई हैड द प्रिविलेज टू हैव अ कुक एट होम। सो जो ओके आती थी सुबह बनाने, जो आती हैं जैसे काफी हाँ घरों में आते हैं कुक्स, तो वो आती थी सुबह बनाने। तो उनका टाइम ऐसे सेट था कि मेरे ऑफिस जाने से पहले वो खाना बनाने आ जाती थी, तो मैं घर का खाना लेके जाती थी। एंड अपने साथ में मिड मील स्नैक्स भी लेके जाती थी डब्बों में पैक करके, ताकि फिर ऑफिस में इधर उधर की कोई मंचिंग ना हुई। अगर कभी ऐसा दिन हो गया कि कुक नहीं आई, तो मुझे लगता है उसके भी ऑप्शंस होते हैं। आई थिंक बॉइल्ड अंडा कहीं भी मिल जाता है, ठेले पे भी मिल जाता है बाहर, ऑफिस की कैंटीन में भी मिल जाता है। फ्रूट्स बहुत इजीली एक्सेसिबल चीज है, वो आसानी से मिल जाते हैं। और आजकल तो स्विगी इंस्टामार्ट का जमाना है, हाँ आई जब कोविड नहीं था उससे पहले तो नहीं था इंस्टामार्ट। तब तो हमें ऑफिस के नीचे जाके ढूंढना ही पड़ता था कुछ ना कुछ, या कैफेटेरिया में अगर कोई हेल्दी ऑप्शन है, ऑमलेट मुझे लगता है मोस्टली कैंटीन से मिल जाता है। हम्म थिंग्स लाइक चीला मिल जाएगा आपको, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन, पोहा, ये सब चीजें, फ्रूट्स मिल जाती हैं मोस्टली जगहों पे। तो राइट फिर राइट मैं उन पे रिलाई करती थी किसी दिन अगर कुक नहीं आए तो। तो अगर डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? या सॉरी। डेफिनेटली मतलब ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत फैंसी ईटिंग के लिए आपको जाना पड़ता है टू लूज कुछ भी फैट। नहीं। मैं बहुत अपने लोगों के साथ साथ, ये होता है। मैंने हाँ, जैसे आपने बताया कि आप कीटो करते हो, आपने कीटो ट्राई करा था, मतलब करते नहीं हो, आपने कीटो या, ट्राई करा था, राइट? अभी मैं पर्सनली मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करता हूँ। हम्म, ठीक है, मैं इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे स्केड्यूल को सूट करती है। राइट, मतलब मैं एक बैचलर हूँ, मैं और 4-5 लड़कों के साथ एक फ्लैट में रहता हूँ। तो हम्म, अगर मुझे सुबह खाना खाना है, मेरे को अपनी 8 मील खानी है या 9 मील खानी है, तो मुझे वो सारी खुद बनानी पड़ेगी। राइट, राइट, तो मेरा ये होता है कि ठीक है, मेरा सुबह 7 बजे से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और क्योंकि मेरी हम्म, स्लीप साइकिल, मेरे को एक बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है सोने के लिए, हम्म, तो मेरे लिए प्रेफरेबल रहता है कि मैं 3 बजे अपना खाना खाऊं पहले, 3 बजे अपनी ओके, पहली मील लूं, और फिर उसके बाद मैं रात को अब 9 बजे तक, 10 बजे तक अपनी लास्ट मील खत्म करूं। उसके बाद फिर ओके, अपना थोड़ा बहुत वॉक करके एंड रात का काम करके मैं 12, 12:30, 1 बजे तक सो जाऊं। ओके, राइट, तो वो मेरे लिए सूटेबल रहता है, बट फिर ना इससे चीजें बहुत अलग अलग कंक्लूजन्स ड्राइव हो जाते हैं लोगों के दिमाग में। राइट, कि मैं कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब कि यही चीज उनके लिए भी बेस्ट है। ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, राइट, आई मीन, या, हाँ, जैसे आपने आपने किसी और को देखा कीटो करते हुए, उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, यू ट्राइड या, कीटो, सो हाउ डज अ पर्सन नो कि एक्चुअली उनके लिए बेस्ट क्या है, कि किस तरह की डाइट उनको फॉलो करनी चाहिए व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यूट्रिशन प्लान या कुछ भी।
So what Yeah. would be a best thing for you if you're not privileged enough to get a nutritionist on board as of now, या आपको Hmm. श्योरिटी नहीं है, आपको बस एक इनिशियली स्टार्ट करना है, तो हाउ डू यू स्टार्ट योर न्यूट्रिशन जर्नी, या Yeah. हाउ डू यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी? आई थिंक ये काफी सिंपल है और इसको हम काफी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सोशल मीडिया और इतना इंफॉर्मेशन जो आता रहता है कि, हाँ. बट बहुत सिंपल है. विच थिंग सम थिंग्स दैट यू कांट गो रॉन्ग विद, जैसे कि घर का खाना, कम तेल में बना हुआ, जिसमें हर मील में आपकी सब्जी हो. हम्म. देन भूख से थोड़ा कम खाना, विच इज पॉसिबल, हम्म. तो वो तभी पॉसिबल है जब आप बिना टीवी और गैजेट्स में देखे खाना खाओ. तो राइट. भूख, पोर्शन साइज पे कंट्रोल करके रखना. फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना मिड मील्स में, इंस्टेड ऑफ स्नैकिंग ऑन बिस्किट्स एंड अनहेल्दी थिंग्स. जो आग सामने दिखा वो खा लिया. थोड़ा प्लान करना कि अच्छा, हेल्दी फैट्स खाने हैं, मतलब बादाम कंट्रोल में वो भी खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, अंडा खाना है, या अगर कोई अंडा नहीं खाता है तो शाम का नाश्ते की थोड़ी सी प्लानिंग करना, थोड़े लो कैलोरी, जैसे स्प्राउट्स खा लिए या कुछ ऐसा कुछ. तो ये अगर आप, हर कोई कुछ सिंपल अपना न्यूट्रिशन प्लान खुद भी बनाता है ना और करता है, ये सब चीज़ों को फॉलो करेगा कोई भी, एंड साथ में बेसिक्स लाइक वॉक पे जाना रोज, हम्म. और एक्सरसाइज करना हफ्ते में 5 दिन कम से कम. राइट. आई थिंक ये सब चीजें भी कर ले अगर कोई, तो काफी हद तक वो अपने आप खुद ही रिजल्ट्स ले आएंगे. राइट. बट हाँ, एक ये चीज भी होती है कि लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मेरे को ना कोई पुश चाहिए, आई नीड समवन टू पुश मी टू हाँ, वर्किंग आउट. राइट. आई एम वन ऑफ देम. How do you need a push to working out? Like you mentioned कि you need a push to working out, but you have also, अभी आपने पहले बताया कि you have been consistent for 1.5 year. You stayed यस. consistent. आप रोज, so how did you used to push yourself? या क्या push था आपको जो आप जाते थे उस टाइम सो सबसे बड़ा पुश था कि मैंने अपने आप को क्लासेस में एनरोल करा के रखा है हमेशा. पे? हम्म. आई नो, अगर मैं कोई ऐप की मेंबरशिप लूंगी तो मैं शायद कभी वर्कआउट नहीं करूंगी, वो मेरे लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी. बट अगर, राइट. तो हैविंग अ कोच, हैविंग अ ट्रेनर who is seeing my progress, who's helping me exercise is very helpful for me. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो किसी योगा स्टूडियो में हो. तो हम्म. आई रियली इंजॉय वर्किंग विद अ कोच. एंड आई थिंक जो काफी लोग मेरे को भी आके ये बोलते हैं कि मैं जिम नहीं जा सकती, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, और मुझे कोई डंडा देने वाला नहीं है, तो आई फील, मैं उनको बोलती हूँ गेट अ पर्सनल ट्रेनर. और अगर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होते रहते हैं, अब तो ऑनलाइन अब कॉन्टेस्ट तो होते रहते बहुत हैं, चल गया है. अब तो बहुत है चल ना. गया है जब से कोविड के बाद से, तो इतना कोविड हुआ ज्यादा है. ऑनलाइन. मतलब मैं यस. एक खुद कोविड का आउट प्रोडक्ट हूँ. मतलब दो मैंने कोविड से पहले जनवरी 2020 में स्टार्ट कर लिया था. बट या. ऑनलाइन एक चीज को इतना बड़ा आप किसी चीज को बना सकते हो कि यस. इतनी क्लासेस या ये चीज चल सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर और कुछ भी नहीं तो हेल्दीफाई मी हो गया, या फिर यस. कल्ट कल्ट इटसेल्फ इज अ ग्रेट यस. एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन फिटनेस. यस. ऑनलाइन बहुत सो ट्रेनिंग्स फिट करवाते ऑफिश, सो फिट करके है, वो लोग चैलेंज अपने करते रहते हैं. ऐसे कोई हैं. ना कोई 40 डे में, आप 40 डेज के लिए एनरोल कर सकते हो उन चैलेंजेस में. वो रोज वर्कआउट सेशन होगा, लाइव ट्रेनर आके आपको कराएंगे. बॉक्स फिट है, बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई करना चाहे तो आई थिंक दैट वर्क्स रियली वेल, राइट. enrolling सो yourself in अभी some actual club. अभी यू आर परस्यूइंग योगा एंड वेट ट्रेनिंग दोनों साथ में? So weight training कम है compared to yoga. I won't say 50-50 split है. I would say 80% हम्म. yoga है, 20% weight training है. And yoga के लिए भी I train under 2 teachers जिनसे मैं क्लासेस लेती हूँ. एक ऑनलाइन है जिनसे मैं ज्यादा क्लासेस लेती हूँ, वो ऑनलाइन है, एंड शी इज बेस्ड आउट ऑफ पुणे, एंड मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ लाइफ में. ये मैंने तो काफी प्रोग्रेस किया है. ये तो ना अब वो हो गया है. मतलब एक, आप कह सकते हो कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, कि आप अपने, यस. शायद आप अपने मेंटोर से बहुत टाइम तक ना मिलो, या या. शायद कभी. या.
हेलो। या आई थिंक कोई नेटवर्क चला गया बीच में. कैन यू हियर मी? है ना? यू नो एंड एक मिथ की बात मैं करना चाहूंगी जो मेरे को बहुत लोगों ने बोला था जब मेरी डिलीवरी हुई थी, कि जब मेरा हाँ हुआ जी। था सी सेक्शन, और मुझे हम्म। बहुत लोगों ने बोला कि अब तो तुम्हारा टमी कभी अंदर नहीं जाएगा, अब तो देखना बाहर निकला रहेगा. पर चलो, हम्म। कुछ मम्मियाँ तो ऐसी होती हैं, तो ऐसे बोल, मतलब मुझे काफी लोगों ने बोला हम्म। था आप wherever you want to put this. ये बहुत बड़ा मिथ है. एंड प्लीज, अगर किसी को सी सेक्शन हो जाता है या इमरजेंसी में करना पड़ता है जैसे मेरे साथ हुआ, तो प्लीज डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ. You can still achieve a flat stomach after C-section. That is not the reason that you will never get a flat stomach. Or डेफिनेटली नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो सकता है अनटिल एंड अनलेस कि किसी ने आपकी बॉडी में कुछ ऐसा डाल दिया हो कि आपका yeah, पेट अब अंदर घुस ही नहीं सकता. true. राइट? आई डोंट फील कि ऐसी कोई भी सिचुएशन है जिसमें यू कांट गेट अ फ्लैट स्टमक. Six pack abs is Yeah, a different thing, getting abs is a different thing, but getting a flat belly is certainly possible, चाहे आप किसी भी चीज से आ रहे हो. yeah, absolutely. राइट? इट माइट बी पॉसिबल कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, तो बाकी दुनिया Yes, 6 महीने में कर लेती है, आप 1 साल 1.5 साल में करो, बट इफ यू स्टे yes. कंसिस्टेंट विद इट, यू विल डेफिनेटली रीच इट. टाइम जरूर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट हो जाएगा. राइट? एंड डेफिनेटली मृणाली इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर दिस. राइट? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा बात करके. राइट? मुझे भी आई it was great. आप कहाँ रहते हो कुछ? मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ. अच्छा, ओके ओके. मैंने अपनी बीटेक यहीं से करी थी. आई डिड माय बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, एनआईईटी. और अच्छा, बीटेक के फाइनल ईयर में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मैकेनिकल वाले फील्ड में नहीं जाना है. ओके. सो देन आई स्टार्टेड 2020 में, मेरा फाइनल ईयर खत्म हुआ. 2019 में आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ और करना है. 2020 जनवरी में आई स्टार्टेड ऑनलाइन कोचिंग की. ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, अभी फाइनल ईयर ही तो चल रहा है. एंड अच्छा. फिर कोविड हो गया, तो फाइनल ईयर सितंबर तक स्ट्रेच हो गया. सितंबर तक आते आते हमें समझ में आ गया कि भाई इसमें करियर बन सकता है. राइट? आई चलो फिर, अभी तो आपका कॉल है, आई गेस वील हैव हाँ टू एंड सब. इट टुडे हियर. यस, राइट? ठीक I'll है. definitely invite you to some another episode someday. अभी यस तो मेरे यस, को इंट्रो में इसका शूट करूंगा एक. राइट? ठीक. Okay, then thank you so much for ओके, coming up to the podcast, Manali. थैंक यू. And it was great talking to you. Anyone who wants to contact her, तो मैं यहाँ पे नीचे शायद इधर कहीं पे इनका इंस्टाग्राम का और बाकी लिंक्स आ जाएंगे. Mrinali is a physiotherapist. She is a personal trainer, and she is a nutritionist. She's helping moms into female, and she's into female fitness basically. She is a mom herself doing fitness. And in any case you want to contact her, want any advice from her, you can contact her here. Thank you so much for coming on, Maud Minali. I'll थैंक see यू you the सो next time. ग्रेट. यस, सी यू Yeah. सून. All right. Okay. Bye bye.